Good afternoon, one and all. Today is 22nd March 2021 and we'll be taking fourth unit structure. What is structure? Before we begin with the structure, there is a problem and let's see what is the solution of that problem. The problem is how to group together a collection of data items of different types that are logically related to a particular entity. Means we have seen the concept of logically related items into one, which is called as array. What is an array? Array is a homogeneous collection of data, or we can say it is a collection of similar type of data. Similar type of data, when you collect together, we call it as a array. But in case, suppose if the elements or the data which you are collecting in one group, those are of different data types, then what? अगर जो हम कलेक्शन कर रहे हैं जिनको एक एज अ यूनिट वर्क करना है बट उनका डेटा टाइप्स अलग अलग हैं और उनको कलेक्ट करके उसको एक नाम देना है, तो हम उसको एरे तो बोल नहीं सकते हैं. Then what is the solution to that problem? So the solution is the structure. The structure is one which is the data items, collection of data items of different types that are logically related to each other. So it is a collection of different data types. Structure is a collection of different data types, whereas array is a collection of similar data types. This is the main difference between structure and a array. Okay, now let's see structure and the definition of the structure. A structure is a collection of variables of different data types under a single name. एक नाम के अंदर हम उसके अलग अलग different data types को कॉल करेंगे. Different data types group together. What we are going to do? We are going to group together different data types and we are going to call it by a single name. So the variables are called members of the structure. जो उसके अंदर variables use होंगे अलग अलग data type के, वो उसके members कहलाएंगे. Okay. Structure is also called as user defined data type. देखो मैं क्या word use कर रही हूँ, which word we are using here. Structure is defined as user defined data type. Structure को दूसरा नाम क्या दिया है? User defined data types. हमने inbuilt data types देखे थे, int, char, float, long int, short int, double. Okay. Now let's see user defined. Inbuilt data types are those data types which are already present in the compiler. वो compiler के अंदर data types already present है. अब structure क्या होता है? Structure is also called as user defined data type. मतलब हम अपना खुद का एक नया data type बना रहे हैं. किस में से जो inbuilt data types हैं उनमें से हम एक अपना खुद का data type बना रहे हैं. Those are called as user defined data types. उनको क्या बोलते हैं हम? User defined data types. So structure is also called as user defined data types. It is a collection of different data types which is called by a single name, and the variables which are being declared in the structure are called as members of the structure. ठीक है, कौन कौन सी पॉइंट्स याद रखना है आपको? स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर एक नया कंसेप्ट है जो हम फोर्थ यूनिट में पढ़ रहे हैं. स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. अलग अलग जो डेटा टाइप्स है उसको हमने कलेक्ट कर लिया है एक नाम के अंदर और उस नाम को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर. जबकि एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स. सिमिलर वर्ड आ जाता है which is called by a single name, then it is called as an array. यहाँ पर अगर मैं array की definition बोलती तो क्या बोलेगा? An array is a collection of variables of similar data types under a single name. अगर इसी में हमने ऐसा बोला, a structure is a collection of variables of different dissimilar data types under a single name. अलग अलग data types एक single name के अंदर जब होते हैं तो उसको structure कहते हैं. जो उसके अंदर वेरिएबल्स रहते हैं, डेटा टाइप्स रहते हैं, उनको हम मेंबर्स बोलते हैं. द वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए होते हैं उनको हम मेंबर्स बोलते हैं. द स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. स्ट्रक्चर को हम और क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं स्ट्रक्चर को. स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. ओके, स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. Now let's see the syntax of a defining a structure. Syntax देखते हैं स्ट्रक्चर डिफाइन करने का. हम क्या कीवर्ड यूज करते हैं? struct. उसके बाद structure name. This is the curly bracket open. This is the curly bracket close. This is semicolon close of the structure definition. Data type, that is the data type of the variable which you are defining within the structure. तो यहाँ variable का नाम आएगा
सेमीकोलन आएगा, यहाँ वेरिएबल का डेटा टाइप आएगा। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं वैसे यहाँ पर भी वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे, बट अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। इंट वेरिएबल नेम, इंट वेरिएबल नेम, इंट वेरिएबल नेम, कैर वेरिएबल नेम, फ्लोट वेरिएबल नेम। तो यहाँ डेटा टाइप आएगा पहले और फिर वेरिएबल का नाम आएगा, जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ, दैट इज स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्लोज हुई, सेमीकोलन से बंद हो गया। तो कैसे लिखते हैं यहाँ हम, कीवर्ड स्ट्रक्ट लिखते हैं, स्ट्रक्चर का नाम जो आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करेगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज पे स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्लोज हो जाती है। स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्लोज करने के टाइम पे सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। यहाँ पर डेटा टाइप लिखना है, वेरिएबल नेम, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, और हर एक को सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है। Okay, once the structure name is declared as a new data type, then the variable of that type can be declared as this. अब एक बार हमने क्या किया, हमने ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट किया, मतलब स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो हमने ये खुद का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कर लिया। जब हमने एक बार यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कर लिया तो हम जैसे वेरिएबल का नाम यूज करते हैं वैसे ही हम इसको यूज करेंगे, स्ट्रक्चर नेम, और फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर का वेरिएबल नेम क्रिएट करेंगे। The members of a structure do not occupy memory until they are associated with a structure variable. इनको मेमोरी तभी एलोकेट होती है जब हम उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो स्ट्रक्चर है उसका जब हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तभी इन वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट होगी। Now let's see how do you declare a structure, and then we'll come back to creating the instance of the structure, that is structure type. Okay, now let's see the स्ट्रक्चर नेम्ड एज स्टूडेंट। अब देखो हमने ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया, क्या कीवर्ड यूज किया, स्ट्रक्ट। ये स्ट्रक्ट कीवर्ड है, ये हर स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग में स्ट्रक्ट लिखना है। फिर यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखा स्टूडेंट, यहाँ कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, सेमीकोलन, बंद हो गया ये। यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, डिफरेंट डेटा टाइप्स डिक्लेयर किए। तो नेम जो है कैरेक्टर एरे क्रिएट किया, रोल नंबर इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया, मार्क्स फ्लोट वेरिएबल क्रिएट किया, जेंडर कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया, फोन नंबर इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो हमने कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए स्ट्रक्चर के अंदर, 1 2 3 4 5। तो ये पांचों क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड एज मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर नेम्ड स्टूडेंट। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टूडेंट। स्ट्रक्ट लिखा, स्टूडेंट लिखा, तो स्टूडेंट क्या है, स्ट्रक्चर का नाम हुआ, स्ट्रक्ट कीवर्ड हुआ, स्टूडेंट जो है वो स्ट्रक्चर का नाम हुआ। स्ट्रक्चर का डेफिनेशन शुरू हुआ कर्ली ब्रैकेट से, स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्लोज हुआ सेमीकोलन से, कर्ली ब्रैकेट सेमीकोलन से। स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर्स क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर ये 5 अलग अलग मेंबर्स हैं। इनका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। ये कैरेक्टर एरे नेम ऑफ 20 है। सेकेंड वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है स्ट्रक्चर के अंदर वो इंटीजर वेरिएबल रोल नंबर है। थर्ड वेरिएबल जो हमने स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर किया है दैट इज फ्लोट, marks. Marks is the variable name and the data type is float. Next variable which we have declared in a structure is character variable, that is gender. तो gender के अंदर हम लोग सिर्फ एक ही character value store कर सकते हैं, whereas name के अंदर एक से ज्यादा character value store कर सकते हैं, that is string, character array of 20 का character array है। यहाँ पर by default एक ही है। लास्ट इज लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट जो है वो फोन नंबर को हमने लॉन्ग इंट से डिक्लेयर किया है, तो इसके अंदर हम वैल्यू लॉन्ग इंट टाइप की स्टोर कर सकते हैं। तो ये 5 अलग अलग वेरिएबल्स हमने स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर किए, तो हम इनको बोलेंगे दीज आर द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। ये कौन है, स्ट्रक्चर के मेंबर्स है। तो हमारा ये स्ट्रक्चर का नाम हो गया, ये स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखने से ये स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, ये स्ट्रक्चर का नाम हुआ, ये कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, सेमीकोलन लगाया, स्ट्रक्चर डेफिनेशन क्लोज हुई। इसके अंदर ये 5 हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। हमने स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में पढ़ा था व्हाट इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो स्ट्रक्चर को हमने एक नाम दिया स्टूडेंट और इनका कलेक्शन किया, डिफरेंट डेटा टाइप्स को क्लोज किया। ऐसे हम ये वेरिएबल्स मेन के अंदर ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, बट हम इनको क्या किया, हमने इनको ग्रुप करके एक नाम के अंदर डाल दिया। तो स्टूडेंट जब मैं रेफर करूंगी तो ये पांचों के पांचों मेंबर्स जो है उसको मैं रेफर कर रही हूँ। तो ये ग्रुप ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप्स इज अ स्ट्रक्चर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रक्चर का इंस्टेंस क्रिएट किया, एसटी। एसटी क्या है, एसटी इज अ स्टूडेंट टाइप। जैसे हमने इंट रोल नंबर लिखा तो रोल नंबर इज ऑफ टाइप इंटीजर, नेम 20, नेम इज ऑफ टाइप कैरेक्टर एरे, मार्क्स इज ऑफ टाइप फ्लोट, gender is of type character, phone number is of type long int. Similarly, st is of type student. What is student? Student is a structure. What is student? Student is a
स्ट्रक्चर, तो st क्या हो गया, उसका इंस्टेंस हो गया। एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे, स्टूडेंट st1 st2 st3, तो हमने कैसे लिखा ये, तो st1 क्या है, ये एक स्टूडेंट वेरिएबल हुआ, st2 सेकंड हुआ, st3 थर्ड हुआ। ये स्ट्रक्ट कीवर्ड ऑप्शनल है, यहाँ पर जब हम क्रिएट करते हैं तो अगर हमने नहीं भी लिखा तो भी चलता है, ये स्ट्रक्ट कीवर्ड। डायरेक्टली स्टूडेंट लिखा तो स्टूडेंट हमारा डेटा टाइप बन गया, कौन सा डेटा टाइप बन गया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये डेटा टाइप हो गया, इसका इंस्टेंस हो गया ये st इज ऑफ टाइप स्टूडेंट। सिमिलरली यहाँ पर st1 st2 st3 ये क्या हो गए, हमारे तीन इंस्टेंसेस क्रिएट हो गए स्टूडेंट के, तीन वेरिएबल्स क्रिएट हो गए स्टूडेंट के। और स्टूडेंट क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर ने इस डेटा टाइप को डिफाइन किया हुआ है। ओके, now defining a structure, each variable of a structure has its own copy of the members। हर जो variables create हो रहा है structure में वो उसकी खुद की एक कॉपी है, own copy of member variables। हर एक structure के अपने पास में एक own copy है, ये चीजें पॉइंट याद से सुनो। own copy of member variables, हर structure के पास में अपनी एक खुद की एक कॉपी है। मतलब जैसे अगर मैंने सपोज ये वेरिएबल डिक्लेयर किया st1, st1 अगर हमने डिक्लेयर किया तो st1 के लिए ये पूरे के पूरे मेंबर्स की एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी, st2 के लिए ये सेकंड कॉपी क्रिएट हो जाएगी, st3 के लिए थर्ड कॉपी क्रिएट हो जाएगी। जितने हमने ये वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं स्टूडेंट टाइप के, वो तीन के लिए तीन कॉपीज क्रिएट हो जाएंगी। तो तीनों अपने अपने वेरिएबल्स को रेफर करेंगे। तो उनको रेफर करने के लिए क्या तरीका है, द मेंबर वेरिएबल्स आर एक्सेस्ड यूजिंग द डॉट ऑपरेटर और द मेंबर ऑपरेटर। जो मेंबर वेरिएबल्स हैं वो किससे एक्सेस होते हैं, डॉट ऑपरेटर से। हम डायरेक्टली वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे हम मेन के अंदर डायरेक्टली अगर मैं वेरिएबल ये लिखती हूँ रोल नंबर या नेम, तो डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इनको एक्सेस करने के लिए हमको st1 डॉट ये मेंबर्स को एक्सेस करना पड़ेगा। सो दीज मेंबर्स आर एक्सेस्ड ओनली यूजिंग द इंस्टेंस, इंस्टेंस को यूज करके ही हम मेंबर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। okay, so the member variables are accessed using the dot operator or the member operator. For example, st1 dot name is the member variable of st1 structure variable, while st3 dot gender is the member variable gender of st3 structure variable। मतलब ये हमारा इंस्टेंस हुआ, ये स्ट्रक्चर टाइप हुआ, डॉट वेरिएबल नेम हुआ, स्ट्रक्चर टाइप हुआ, डॉट वेरिएबल नेम हुआ। मतलब हम ये नेम किसका रेफर कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर st1 जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, उसके नेम को रेफर कर रहे हैं। सेकंड जो हमने रेफर किया वो थर्ड स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया उसके जेंडर को रेफर कर रहे हैं, st3 डॉट जेंडर, st1 डॉट नेम, st1 डॉट st1 डॉट st1 डॉट नेम, st1 डॉट रोल नंबर, st1 डॉट मार्क्स, st1 डॉट जेंडर, st1 डॉट फोन नंबर। तो ये पूरा st1 को रेफर किया। सिमिलरली st2 के लिए इसकी पूरी कॉपी बन जाएगी, st2 डॉट नेम, st2 डॉट रोल नंबर, st2 डॉट मार्क्स, st2 डॉट जेंडर, st2 डॉट फोन नंबर। सिमिलरली थर्ड जो इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है स्टूडेंट का स्ट्रक्चर का, उसको कैसे रेफर करना है, उससे कैसे मेंबर्स को रेफर करना है, st3 डॉट नेम, st3 डॉट रोल नंबर, st3 डॉट मार्क्स, st3 डॉट जेंडर, st3 डॉट फोन नंबर। चाहे हमको इन मेंबर्स की वैल्यू को रीड करना हो, प्रिंट करना हो, या उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, हमको यही तरीका अपनाना पड़ेगा। ओके, नाउ सी हियर द स्ट्रक्चर डेफिनेशन एंड द वेरिएबल डिक्लेरेशन कैन बी कंबाइंड एज। स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और वेरिएबल का उसको इकट्ठा कैसे कंबाइन किया जाता है। struct student लिखा, struct student, and then we have declared the variables and here we have closed, और यहाँ पर डायरेक्टली हमने लिख दिया, यहाँ पर डायरेक्टली हमने st1 st2 st3 डायरेक्टली लिख दिया। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो ये स्टूडेंट टाइप का क्रिएट हो गया, st1 जो है वो स्टूडेंट टाइप का क्रिएट हो गया, st2 जो है स्टूडेंट टाइप का क्रिएट हो गया। मतलब अलग से सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सेमीकोलन के पहले अगर हमने ऐसा लिख दिया तो ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका जो मैंने भी पिछली बार बताया था कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट और फिर उसके बाद में st1 st2 st3 इस तरह से लिख सकते हैं, और ये शॉर्टकट तरीका है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये st1 st2 st3 ये तीन इंस्टेंस क्रिएट हो गए स्टूडेंट के स्ट्रक्चर के, स्टूडेंट स्ट्रक्चर के तीन इंस्टेंस क्रिएट हो गए। द यूज ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑप्शनल,
यूज ऑफ द स्ट्रक्चर नेम इज ऑप्शनल। आप अगर स्ट्रक्चर का नाम नहीं दे रहे हो तो भी ऑप्शनल है, क्यों? क्योंकि हमने इंस्टेंस यही क्रिएट कर दिया। तो जब मैं st1 बोलूंगी तो st1 मतलब इट रेफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ मेंबर्स, st2 मतलब इट रेफर्स टू दिस। तो यहाँ स्ट्रक्चर का नाम नहीं दिया है, ये ऑप्शनल है, पर यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम दिया हुआ है। तो या तो आप लिखो स्ट्रक्चर का नाम या नहीं लिखो। अगर नहीं भी लिखते हो तो ये जो मेंबर्स है, अगर नहीं लिख रहे हैं तो ये मेंबर्स यहाँ पर आना कंपलसरी हो जाता है। पर अगर यहाँ पर आप लिख रहे हो तो ये मेंबर्स हम बाद में भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं और बाद में भी बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, st1 st2 st3 तीन जो है वो वेरिएबल्स क्रिएट किए स्ट्रक्चर टाइप के, नेम्ड एज स्टूडेंट, जिसके अंदर ये 5 मेंबर्स है। ओके, नाउ how do you initialize the members of the structure? Structure name, structure variables equals to value. So there is one-to-one correspondence between the members and their initializing value. C does not allow initialization of individual structure members within the structure definition template. एक एक में वैल्यू को नहीं इनिशियलाइजेशन अलाउ करता है। आप उसको मेंबर्स को किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये देखो, डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट लगा के। अब हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर क्रिएट किया, इसमें हमारे पास में ये मेंबर्स है, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, जेंडर, फोन नंबर, ये हमारे पास में मेंबर्स हैं। और ये हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट st1 क्या क्रिएट किया, हमने इंस्टेंस क्रिएट किया। यहाँ पर भी st1 लिख सकते हो आप, सेमीकोलन के और कर्ली ब्रैकेट के बीच में। अगर हम अलग से लिखते हैं तो यहाँ पर अलग से लिखने का तरीका क्या है, स्ट्रक्ट भी ऑप्शनल है, आपने नहीं लिखा तो चलेगा। स्टूडेंट st1, तो स्टूडेंट हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया, st1 वेरिएबल हो गया, उसका इंस्टेंस हो गया। अब उसके अंदर वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट में। तो पहले नेम है तो ये पहले नेम इनिशियलाइज किए, फिर रोल नंबर है तो रोल नंबर इंटीजर वैल्यू, फ्लोट है मार्क्स तो मार्क्स फ्लोट, कैरेक्टर जेंडर है तो सिंगल कोड में जेंडर, एंड लॉन्ग इंट में फोन नंबर है तो फोन नंबर। सो दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रक्चर। स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है उसके सारे मेंबर्स को हमने इनिशियलाइजेशन किया है। फिर हमने क्या किया, इनको रीड किया, नेम, एक एक टैब स्पेस दिया, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, जेंडर, फोन नंबर, और उसको परसेंटेज परसेंट डी, ये स्लैश टी टैब का स्पेस देता है, एक एक स्पेस देकर रीड करेगा, प्रिंटिंग करेगा। परसेंटेज एस, परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट सी, परसेंट एल डी, लॉन्ग इंट, ये लॉन्ग इंट है, इसके लिए स्पेसिफायर्स यूज करेंगे परसेंट सी। कैरेक्टर एरे है तो परसेंट एस, एरे है तो परसेंट एस, इंटीजर परसेंट डी, फ्लोट परसेंट एफ, कैरेक्टर परसेंट सी, लॉन्ग इंट एल डी। इनको प्रिंटिंग कर रहे हैं, क्यों प्रिंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने इनकी इनिशियलाइजेशन की है। और प्रिंटिंग के टाइम पे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, st1 डॉट नेम, st1 डॉट रोल नंबर, मतलब मैं नेम को अगर रेफर करना है तो मैं नेम को कैसे रेफर करूंगी, st1 से। तो st1 डॉट नेम, st1 डॉट रोल नंबर, st1 डॉट मार्क्स, st1 डॉट जेंडर, st1 डॉट फोन नंबर, एंड देन क्लोज द प्रोग्राम। तो हमने यहाँ इनिशियलाइजेशन किया और यहाँ पर हमने इसके साथ में इसको प्रिंटिंग कराया है। सो दिस इज, वी हैव डिक्लेयर्ड अ स्ट्रक्चर। ओके, now this is the program which prints the members of the structure, values of the members of the structure. Okay, stdio.h structure डिक्लेयर किया, स्ट्रक्ट कीवर्ड देखो डार्क कलर में आ रहा है, दिस इज कीवर्ड। जो भी डार्क कलर के अंदर आते हैं, देखो ब्लैक कलर का ये कीवर्ड है, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड हो गया, स्ट्रक्ट। फिर ये स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमने दो ही मेंबर्स डिक्लेयर किया, एक इंटीजर रोल नंबर और दूसरा कैरेक्टर एरे नेम। ये स्ट्रक्चर को क्लोज किया, यहाँ से मेन बिगिन किया। ओके, मेन का ये कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोजिंग, दिस इज ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। अब फिर से यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड क्रिएट किया, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया बिकॉज स्टूडेंट इज ऑफ टाइप स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ये st1 इज द इंस्टेंस ऑफ द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है इसका हमने इंस्टेंस बनाया st1। तो स्टूडेंट को हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इसका जो ये st1 है ये वेरिएबल्स है। जैसे हम एक इंटीजर बिल्ट इन डेटा टाइप है तो एक ए वेरिएबल डिफाइन करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, इसी टाइप से ये स्टूडेंट जो है ये हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ये इनबिल्ट डेटा टाइप है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर है इसीलिए इसके आगे स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाया हुआ है। ए जैसे वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप, तो st1 इज ऑफ टाइप
स्टूडेंट, st1 किस टाइप का है, स्टूडेंट। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करती हूँ तो a इज इक्वल टू 10 इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर st1 के अंदर कितने मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स हैं, एक रोल नंबर और एक नेम। तो इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट में हमने दोनों की वैल्यू को इनिशियलाइजेशन किया। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज creating the instance of student and initializing the values to st1, that is instance of the student structure। ये student structure जो है वो इसका instance create किया है st1, और st1 is of type student, और उसके अंदर हमने values initialize की 1 and सुहाशनी। So these are the values which are being initialized to st1। अब एक चीज ध्यान रखनी है, पहली वैल्यू इंटीजर टाइप है तो यहाँ इंटीजर वैल्यू इनिशियलाइज की, दूसरी कैरेक्टर एरे है तो कैरेक्टर एरे इनिशियलाइज की। इसका मतलब है कि st1 डॉट रोल नंबर के अंदर ये 1 वैल्यू चली गई, st1 डॉट नेम के अंदर सुहाशनी चला गया, ये वैल्यू चली गई। तो हम इसके मेंबर्स को कैसे रेफर करेंगे, मेंबर्स को रेफर करने के लिए इंस्टेंस क्रिएट करना है, इंस्टेंस नेम डॉट वेरिएबल नेम मेंबर नेम, इंस्टेंस वेरिएबल डॉट इंस्टेंस वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम, ये मेंबर का नाम, जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो मेंबर का नाम। तो डॉट ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल करना है। जब भी रोल नंबर और नेम को यूज करना है तो हम इनको डायरेक्टली रोल नंबर नेम नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के मेंबर्स है। तो यहाँ स्ट्रक्चर का रेफरेंस देना जरूरी है कि स्ट्रक्चर नेम डॉट, स्ट्रक्चर का नाम मतलब st1, स्टूडेंट नहीं लिख सकते यहाँ पर उसका इंस्टेंस लिखना पड़ेगा। यहाँ इंट नहीं लिख सकते ना, जैसे इंट डेटा टाइप है उसको हम इंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेरिएबल इज ऑफ टाइप इंट, तो ए को यूज करेंगे। इसी टाइप से हम किसको यूज करेंगे, st1, st1 इज ऑफ टाइप स्टूडेंट। तो st1 क्या है, स्टूडेंट टाइप। तो st1 डॉट रोल नंबर, st1 डॉट नेम। तो हमको जब भी इसकी वैल्यू को प्रिंट करना होगा, यूज करना होगा, तो हम ऐसे यूज करेंगे। नाउ सी द आउटपुट, roll number is 1, देखो roll number is 1 and roll name is Suhashni and name is Suhashni, it will be printed on the screen। So this is the program to create a structure। अब देखो अगर मैं यहाँ पर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर क्रिएट करती हूँ, एक और तरीका क्या है इनिशियलाइजेशन करने का। सपोज लेट्स सी, now here in this case we have initialized a structure member using this statement, st1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू 1। आप डायरेक्टली रोल नंबर इक्वल टू 1 नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस रोल नंबर इक्वल टू 1। क्यों, रोल नंबर इज अ मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का इंस्टेंस क्या है, st1। तो हमको इसको क्या लिखना पड़ेगा, st1 डॉट रोल नंबर। और st1 डॉट नेम ऐसा क्यों लिखा, नेम इज अ स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज करना पड़ता है, strcpy स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। So it will copy the value Suhashni to the name variable. For that we have to use string.h header file। Okay, similarly at the time of printing also you cannot directly write roll number, तो st1 dot roll number और second वाला जो है name, st1 dot name can be printed। Now see the output, output is roll number is 1 and the name is Suhashni। So in this way also you can do the initialization। Another way of initializing the value to the variable is through scanf statement, read the value from the user। So हमने क्या किया, printf enter roll number किया, scanf %d ampersand st1 dot roll number को read किया, name के लिए enter name और %s is used for string, d is used for integer। So st1 dot name को read किया, नेम के पहले एम्परसेंड साइन नहीं आएगा, सेट ऑफ कैरेक्टर्स है। तो सिमिलरली प्रिंटिंग के टाइम पे st1 डॉट रोल नंबर, st1 डॉट नेम। नाउ लेट्स प्रिंट द वैल्यू। सो कैसे प्रिंट करेगा, एंटर रोल नंबर, तो रोल नंबर मैंने 1 एंटर किया, एंटर नेम SUHASHINI, तो इट विल प्रिंट रोल नंबर इज 1 एंड द नेम इज Suhashni, रोल नंबर इज 1 एंड द नेम इज Suhashni। सो दिस इज आल्सो द वे टू डू द structure initialization।